Hello students, in today's lecture of the amalgamation, we are starting with the practical number 7 in which we have doing the entries in the books of the purchasing company. In the yesterday lecture, we have started the entries in the books of the vendor company. Now, we have discussed the journal entry in the purchasing company also, but in today's lecture, we are starting the practical sum of the entries in the books of the purchasing company. Practical number 7. The balance sheet of the Gaby Limited and the Jagannath Limited as on 31st March 2012 were as under. All the information regarding Gaby and Jagannath is given. Let's see the consideration and the conditions of the amalgamation. The two companies decided to amalgamate on 1/4/2012 and the new company Mahadev Limited was formed with the authorized capital 20 lakh divided into shares in a 10 rupee each. The new company agreed to take over all the assets and liability at a book value of the old company. The particular consideration were agreed as follows. These are the purchase consideration for the Gaby Limited, 4 shares of rupees 10 each fully paid in a new कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द 5 शेयर्स ऑफ द गेबी. जिसके पास 5 शेयर है गेबी लिमिटेड के, उसे नई कंपनी के 4 शेयर मिलेंगे. रेशियो है 5:4. द डिबेंचर होल्डर ऑफ द गेबी लिमिटेड वर अलॉटेड सच डिबेंचर न्यू कंपनी बेयरिंग द इंटरेस्ट रेट एट 10% एज वुड ब्रिंग देम अ सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट. यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट है वो चेंज हो जाती है. 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 50,000, यहाँ पे 8% डिबेंचर्स थे, उसके बदले में उसको 10% के न्यू डिबेंचर्स मिलेंगे, बट इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होनी चाहिए. एंड 6,000 टू बी पेड इन अ कैश टू द गेबी लिमिटेड. दिस इज द परचेज कंसिडरेशन फॉर गेबी लिमिटेड. एंड देन जगन्नाथ 6 shares of rupees 10 each fully paid in a new company in exchange of the 5 shares of Jagannath. Here जिसके भी पास जगन्नाथ के 5 शेयर है उसको नई कंपनी के 6 शेयर मिलेंगे. Then again the same condition for the debenture holder also, and 10 rupees each, 10 rupees in a cash for every 5 shares to the Jagannath Limited. The expense of the winding up the Gaby Limited 2,000 and Jagannath Limited was 4,000 paid by the Mahadev Limited. Mahadev Limited is purchasing company. Remaining shares were issued to public at a premium of rupees 2 per share for the cash which are been fully paid up. In the books of the Mahadev Limited, pass the general entries and prepare a new balance sheet. सो हमें इसमें क्या करना है, पहले तो परचेस कंसिडरेशन दोनों कंपनी का दिया गया है, तो परचेस कंसिडरेशन फाइंड करेंगे. देन नेट असेट फाइंड करेंगे. दोनों कंपनी का देखेंगे कि गुडविल क्रिएट हो रही है या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है. तो ये दोनों कंपनी की पहले कैलकुलेशन करेंगे रिगार्डिंग परचेस कंसिडरेशन. बाद में हम एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ द महादेव लिमिटेड. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन फर्स्ट अबाउट द purchase consideration. Purchase consideration of Gaby Limited. पहले तो परचेस कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं. इशू कितने करने हैं, जैसे कि 5 शेयर होल्डर्स को एक्सचेंज में 4 शेयर मिलेंगे, तो रेशियो इज 5:4. जिसके पास 5 शेयर है उसे 4 शेयर मिलेंगे. टोटल उसके पास कितने शेयर हैं, गेबी के 30,000 शेयर्स हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 24,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच. तो द रुपीज आएंगे 2,40,000 रुपीज. राइट, साथ में डिबेंचर्स एक्सचेंज में दिए जाते हैं, तो वो परचेस कंसिडरेशन में कंसिडर नहीं होंगे, वो पुराने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो परचेस कंसिडरेशन में नहीं आएंगे. प्लस कैश में पेमेंट हो रहा है 6,000 का. थर्ड पॉइंट दिया गया है 6,000 टू बी पेड इन अ कैश, सो 6,000 कैश. तो 2,46,000 is purchase price or purchase consideration, right?
Now we have to find out the net asset. Net asset is equals to total asset minus total liability. Here it is clearly written that they took all the asset and the liabilities. So total asset were 4,25,000. Out of P&L debit balance should be deducted, right? So out of total asset 4,25,000 minus P&L debit balance 1,01,800. So it will come 23,200 minus total liabilities. Which are the liabilities? First, debenture. So let's find out the debenture calculation. यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दिया गया है कि 10% के नए डिबेंचर्स देने हैं बट इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहनी चाहिए. तो कितने रुपीस के डिबेंचर दें जिस तरह से कि इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज ना हो बट इंटरेस्ट की परसेंटेज की अमाउंट तो चेंज हो गई है जो 10% हो गई. तो हमें यहाँ पे डिबेंचर्स कितने रुपए के दिए हैं वो हमें फाइंड करना है. तो पहले उसको इंटरेस्ट कितना मिलता था तो कि 8% डिबेंचर ऑफ ₹50,000. सो 50,000 के 8% 4,000 इंटरेस्ट मिलता था. तो पहले डिबेंचर होल्डर को 4,000 इंटरेस्ट मिलता था, राइट. सो अभी भी 4,000 इंटरेस्ट ही मिलना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं मिलना चाहिए. और अब न्यू डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% है. सो यानी कि 10% होगा तो वो 4,000 इंटरेस्ट उसे मिलना चाहिए. दैट मीन्स इंटरेस्ट इज 4,000 एट अ 10% इंटरेस्ट इज 4,000. सो व्हाट अबाउट द 100%? सो 10% पे इंटरेस्ट 4,000 है. तो अब सपोज 100% यानी कि फुल डिबेंचर की अमाउंट कितनी होगी? ऑब्वियसली इट विल कम 40,000. इट विल कम 40,000 जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए. पहले जिसका इंटरेस्ट मिलता था उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो पहले कितना मिलता था? तो 50,000 पे 8% तो 4,000 आए. तो इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज नहीं होनी चाहिए. अगर इंटरेस्ट 10% है तो हमें 100% पे वैल्यू फाइंड करनी है. तो 40,000 के 10% इट विल कम 4,000. तो इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज नहीं हुई. तो ये हमें अमाउंट फाइंड करनी थी. तो टोटल लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा डिबेंचर 40,000 रुपीज प्लस क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज, देन बिल्स पेबल 15,000. टोटल आएंगे 1,15,000. 1,15,000. Then net asset, total asset minus total liability. That 3,23,200 minus 1,15,000. That is 2,08,200. 2,08,200. So आप देख सकते हो कि परचेज कंसिडरेशन की प्राइस ज्यादा है, नेट एसेट कम है. तो क्या क्रिएट होगा? गुडविल क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा? Goodwill. Goodwill is equals to purchase consideration minus net asset. That is 2,46,000 minus 2,08,200. 37,800 की क्या क्रिएट हुई? गुडविल. क्या क्रिएट हुई? गुडविल. ये किसकी कैलकुलेशन थी? गेबी लिमिटेड की. सेम वे में हमें जगन्नाथ लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन फाइंड करनी है. जगन्नाथ लिमिटेड के इक्विटी शेयर का रेशियो है 6 इक्विटी शेयर इन द एक्सचेंज ऑफ द 5 शेयर्स ऑफ द जगन्नाथ. जिसके पास 5 शेयर है उसे 6 शेयर मिलेंगे. देयर इज द रेशियो इज 5:6. एक्चुअल में उसके पास कितने शेयर्स हैं? 80,000. So 80,000 into 6 divide by 5.
96,000. 96,000 into 10 rupees each, that is 9,60,000. प्लस डिबेंचर के बदले में डिबेंचर 10% के मिल जाएंगे. यस, एंड ₹10 इन कैश फॉर एवरी 5 shares ऑफ जगन्नाथ. कैश पेमेंट कितना होगा? 5 शेयर होल्डर्स को 10 रुपीज मिलेंगे, तो 80,000 टोटल शेयर होल्डर्स हैं, तो रुपीज कितने होंगे? 80,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 5. इट इज 1,60,000 पेड इन कैश. So total 9,60,000 plus 1,60,000. Answer will come 11,20,000. That is purchase consideration or purchase price is 11,20,000. अब हम net asset find करेंगे. All the assets are taken over. So total कितने assets हैं? Total assets are 11,60,000. Total asset is 11,60,000. Out of goodwill 60,000 should be deducted first. So total asset is 11 lakh. That is total asset, right? Minus total liabilities. Which are the liabilities are there? 7% डिबेंचर्स. सो अगेन हमें डिबेंचर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ही हमने गेबी लिमिटेड में की थी कि इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज नहीं होनी चाहिए. तो पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है. 7% डिबेंचर ऑफ ₹2 लाख. सो 2 लाख के 7%, दैट मीन्स 14,000. इंटरेस्ट की अमाउंट क्या हो गई? 14,000. सो 10% पे 14,000 इंटरेस्ट होगा, तो 100% पे कितना होगा? तो वैल्यू अगेन यहाँ पे आएगी 1,40,000. 10% पे 14,000. यहाँ पे हम कैलकुलेशन जगन्नाथ की कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट 14,000 है. तो 10% पे 14,000, तो 100% पे कितना आएगा? तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 1,40,000. सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 10% ऑफ द डिबेंचर 1,40,000. देन और लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 40,000 एंड बिल्स पेएबल 10,000. टोटल आया 1,90,000. 1,90,000. So net asset is equals to total asset minus total liability. So 11 lakh minus 1,90,000. It will come 9,10,000. 9,10,000. अमाउंट क्या आई? 9,10,000. सो देख लेते हैं. परचेज कंसिडरेशन है 11,20,000 एंड नेट एसेट है 9,10,000. ऑब्वियसली क्या क्रिएट होगा? गुडविल क्रिएट होगा. तो गुडविल इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट. परचेज कंसिडरेशन है 11,20,000 माइनस 9,10,000. गुडविल क्रिएट होगी 2,10,000 की. गुडविल कितने की क्रिएट होगी? 2,10,000 की. तो हमने कैलकुलेशन की गेबी लिमिटेड की, तो गुडविल क्रिएट हुई 37,800. परचेज कंसिडरेशन है 2,46,000 एंड जगन्नाथ लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन है 11,20,000 एंड गुडविल क्रिएट हुई 2,10,000 की. नाउ वी आर डूइंग द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द महादेव लिमिटेड. महादेव की बुक्स में जनरल एंट्री करते हैं पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट. हमने कल जनरल एंट्रीज की थी, उसमें सबसे पहले एंट्री कौन सी थी? सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट
अगर गुडविल क्रिएट हो रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर गुडविल क्रिएट हो रही है तो कैपिटल रिजर्व नहीं क्रिएट होगा, राइट। 2 सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट एंड 2 लिक्विडेटर और कंपनी अकाउंट क्रेडिट विद द परचेज प्राइस। तो यहाँ पे परचेज प्राइस से अकाउंट से एंट्री होगी। तो जितने भी असेट हम टेकन ओवर कर रहे हैं वो सारे के सारे असेट डेबिट होंगे। गुडविल क्रिएट हुई है तो गुडविल भी डेबिट होगी। 2 सन्ड्री लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटी टेकन ओवर कर रहे हैं वो, और परचेज प्राइस से लिक्विडेटर और वेंडर कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम गेबी लिमिटेड की एंट्री करते हैं। गेबी लिमिटेड के हमने जितने भी असेट परचेज किए हैं वो सारे के सारे डेबिट करेंगे। तो पहले गेबी लिमिटेड की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या टेकन ओवर किया है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,16,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 64,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 90,000, debtors account debit after deducting the bad debt reserve, that is 53,200, and P&L will not be considered, right? This is just because P&L is a debit balance. So all the asset are taken over, it's debited. If it is goodwill created, yes, goodwill is created. So goodwill account debit rupees 37,800. गेबी लिमिटेड की जो भी गुडविल क्रिएट हुई है वो कितनी है, 37,800. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. सो 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 40,000 टू क्रेडिटर्स 60,000, 2 bills payable rupees 15,000, and 2 vendor company. Who is the vendor company over here? गेबी लिमिटेड. सो गेबी लिमिटेड को हमें कितने पे करने हैं, विद द परचेजिंग प्राइस, दैट इज परचेज कंसिडरेशन. Purchase consideration is 2,46,000. So here we will write 2,46,000. So this is the first entry when all the assets and liability are taken over by the company. अब purchase consideration 2,46,000 पेमेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 24,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच शेयर में पेमेंट होंगे और कैश में 6,000 पेमेंट होंगे, राइट. सो हमें पेमेंट की एंट्री करनी है. सेकेंड एंट्री, गेबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,46,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 and 2 cash account 6,000, राइट. सो ये थी गेबी लिमिटेड के एंट्रीज. सेम वे हम जगन्नाथ के लिए करेंगे. एंट्री नंबर 3, all the assets which are taken over from the जगन्नाथ लिमिटेड we have to debit. एंड अगर गुडविल क्रिएट होगी है तो हाँ 2,10,000 रुपए की गुडविल भी क्रिएट हुई तो वो भी हम डेबिट करेंगे. 2 क्रेडिट क्या करेंगे, ऑल द टेकन ओवर लायबिलिटीज एंड परचेज कंसिडरेशन टू द जगन्नाथ लिमिटेड, राइट. सो एंट्री करते हैं. सबसे पहले क्या हमने टेकन ओवर किया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,40,000, then plant 1,80,000, then stock 3,20,000, then debtors 1,60,000, bills receivable
1,20,000. बैंक बैलेंस 80,000. ये सभी हुए डेबिट. 2, जितनी भी लायबिलिटीज हमने टेकन ओवर की है तो सबसे पहले आएंगे 10% डिबेंचर्स. 10% डिबेंचर्स की हमने वैल्यू फाइंड की थी 1,40,000. सो इट विल कम 1,40,000. 2, creditors 40,000. 2, bills payable 10,000. and 2, Jagannath Limited total purchase consideration, that is 11,20,000. So here we will come 11,20,000. आप टोटल डेबिट अमाउंट एंड टोटल क्रेडिट अमाउंट चेक कर सकते हैं, वो दोनों सेम ही आएंगे. नाउ एंट्री, अब कौन सी एंट्री होगी? जगन्नाथ लिमिटेड को 11,20,000 हम कैश पेमेंट करेंगे, तो वो भी हमने कैलकुलेशन कर लिया है. 9,60,000 के शेयर मिलेंगे और 1,60,000 का कैश पेमेंट होगा. तो एंट्री आएगी जगन्नाथ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 11,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,60,000 and 2 cash account 1,60,000. समझ में आया? ऐसे ही हमने दोनों कंपनियों की एंट्रीज कर ली है. गेबी लिमिटेड की टोटल असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंड पेमेंट, परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट, वैसे ही जगन्नाथ की कैलकुलेशन. अब हम कल लास्ट में देखा था कि लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री आती है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना है? तो 2,000 केबी के और 4,000 जगन्नाथ के. हु इज पेड? महादेव इज पेइंग. सो एंट्री आएगी टोटल 6,000 एक्सपेंस की. सो लास्ट एंट्री आएगी लिक्विडेशन एक्सपेंस की. तो गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000, 4,000 प्लस 2,000 टू बैंक अकाउंट, और बैंक और कैश कुछ भी लिख सकते हो, 6,000. सो ये लास्ट में एंट्री आएगी. सो ऐसे ही हमने दोनों कंपनियों की असेट टेकन ओवर की, परचेस कंसिडरेशन पे किया और लास्ट में लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया, उसकी एंट्री आएगी. अब इसी हिसाब से हमें क्या बनाना है? न्यू बैलेंस शीट बनानी है फॉर द महादेव लिमिटेड. जो नई कंपनी बिल्डअप हो रही है उसकी हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है. अभी न्यू बैलेंस शीट बनाने से पहले लास्ट में एक सेटलमेंट दिया गया है और एक एडजस्टमेंट दिया गया है. रिमेनिंग शेयर्स वर इश्यूड टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर द कैश विच हैव फुल्ली पेड अप. सो ये रिमेनिंग शेयर्स क्या होते हैं? तो टोटल हमारे पास कितने ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपीज. कितनी है? 20 लाख रुपीज ऑफ 10 रुपीज ईच. उसमें से हमने कितने शेयर्स इश्यू कर दिए हैं? दोनों के, जैसे कि गेबी के एक्सचेंज में और जगन्नाथ के एक्सचेंज में, उसका टोटल करेंगे और जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हम पब्लिक को इश्यू करेंगे. तो हमने 2,40,000 रुपीज इन द एक्सचेंज ऑफ द गेबी लिमिटेड के इश्यू कर दिए हैं, जैसे कि 2,40,000 हो गए, प्लस 9,60,000 हमें जगन्नाथ के इश्यू हो गए हैं. सो 9,60,000, दैट इज टोटल 12 लाख के तो इश्यू हो चुके हैं. और हमारे पास बैलेंस है टोटल 20 लाख की. दैट मीन्स अभी भी हमें 8 लाख के न्यू शेयर्स इश्यू नहीं किए हैं. तो रिमेनिंग शेयर्स आर ₹8 लाख. वो 10 रुपीज ईच है, तो डिवाइड बाय
10. सो 80,000 के न्यू शेयर्स हम पब्लिक में इश्यू करेंगे विच इज फुल्ली सब्सक्राइब. वो सभी हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है. तो वो लास्ट एंट्री उसकी कर लेते हैं. तो 80,000 रुपीज के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बट हमें पेमेंट करना है विद द 2 रुपीज प्रीमियम. सो 12 रुपीज में हमें इश्यू करना है. 80,000 into 12, that is 9,60,000, in which 10 rupees is face value and 2 rupees is security premium. Right? तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000 to equity share capital 8 lakh and 2 security premium rupees 1,60,000. राइट? तो इस तरह से लास्ट का जो एग्जिस्टमेंट था उसकी भी एंट्री हमने कर ली. अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे. पहले असेट साइड देख लेंगे, बाद में लायबिलिटी साइड देख लेंगे. तो असेट में हमारे पास क्या क्या है? तो सबसे पहले इंटेंजिबल असेट आएंगी. तो गुडविल गेबी की है 37,800. साथ में गुडविल यहाँ पे गुडविल की एंट्री रह गई है. तो यहाँ पे गुडविल क्रिएटेड दैट इज 2,10,000 रुपए की जगन्नाथ के टाइम पे एंट्री हुई थी, वो नहीं हुई है. सो यहाँ पे 2,10,000 रुपीज की भी गुडविल क्रिएट हुई है. तो यहाँ पे टोटल गुडविल अकाउंट डेबिट कितने टाइम है? 3 टाइम है. 37,800, 2,10,000 and 6,000. What is the total amount? Goodwill. 37,800, 2,10,000 plus 6,000. 2,53,800. Then land and building. लैंड एंड बिल्डिंग गेबी के पास से 1,16,000 की मिली थी और जगन्नाथ की 2,40,000 की मिली थी. दैट इज टोटल 3,56,000. अब सिर्फ दोनों असेट का क्लब करना है. बाद में प्लांट गेबी का था 64,000 का और जगन्नाथ का था 1,80,000 का. तो टोटल आया 2,44,000 का. उसके बाद है स्टॉक. स्टॉक की अमाउंट क्या है? जगन्नाथ की 3,20,000 एंड गेबी की 90,000. टोटल है 4,10,000 रुपीज. देन डेप्टर्स हैं 53,200 प्लस 1,60,000. दैट इज 2,13,200 after deducting the BDR, right? Then bills receivable 1,20,000. Then bank balance हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो हम लास्ट में फाइंड करते हैं. अब लायबिलिटी के साथ देख लेते हैं. लायबिलिटी में फर्स्ट आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, कितने टाइम क्रेडिट हुआ? 2,40,000, देन 9,60,000 एंड लास्ट में हुआ 8 लाख. 2,40,000 प्लस 9,60,000 प्लस 8 लाख. टोटल 20 लाख ऑथोराइज कैपिटल हो गए हैं. इक्विटी शेयर आ गई 20 लाख. देन सिक्योरिटी प्रीमियम दैट वी हैव न्यू क्रिएटेड
when the new shares are issued, we have created 1,60,000 as the security premium. So we will write security premium 1,60,000. Then 10% debentures. Total 10% debentures are 40,000 paid to the GB Limited and 1,40,000 was there in Jagannath Limited. So 1,40,000 plus 40,000. 1,80,000 was total debenture. Then creditors का दोनों को मिला के 60,000 and 40,000. It will come 1 lakh. Then bills payable, that is 15,000 plus 10,000, 25,000. राइट अभी सभी एंट्री हो गई है, सिर्फ बैंक की अमाउंट बाकी है. बैंक की ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैंक बैलेंस अब हमारे पास जगन्नाथ की 80,000 है, वो टेकन ओवर हो गई. अगर अब हम देखेंगे जनरल एंट्री में कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट हुआ होगा तो माइनस करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं सभी जनरल एंट्री में. फर्स्ट एंट्री में कैश की बैंक की अकाउंट बैलेंस नहीं है. देन सेकंड में 6,000 का पेमेंट हुआ है तो 80,000 में से 6,000 लेस करेंगे, दैट इज 74,000. देन बैंक बैलेंस 80,000 तो हमने कंसिडर कर ली थी. देन यहाँ पे 1,60,000 की अगेन माइनस पेमेंट हो रही है, सो 1,60,000 की पेमेंट हो जाएगी. देन अगेन 6,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया है, वो भी माइनस हो जाएगा. और लास्ट में 9,60,000 रुपीज के न्यू शेयर इश्यू हुए हैं तो उसकी पेमेंट मिली है, सो वो डेबिट है तो वो प्लस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 8,68,000. अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी रफली कैलकुलेट कर सकते हो. जितनी भी बार डेबिट हुआ है वहां वो डेबिट साइड लिखेंगे, जितनी भी बार क्रेडिट हुआ है क्रेडिट साइड लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे. जैसे अभी मैं करके दिखाती हूं और एक बार ऐसे ही रफ कैलकुलेशन. सो पहले कैश क्रेडिट हुआ 6,000 से, सो 6,000 क्रेडिट साइड लिख लेते हैं. देन 80,000 यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे 80,000 डेबिट हो गया. उसके बाद 1,60,000 क्रेडिट है तो यहाँ पे अगेन 1,60,000 क्रेडिट हो गया. अगेन यहाँ पे 6,000 क्रेडिट है तो यहाँ पे अगेन 6,000 क्रेडिट कर दूंगी. और 9,60,000 डेबिट है तो अगेन यहाँ पे मैं 9,60,000 डेबिट कर दूंगी. अब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करूंगी तो आपको सेम आंसर मिलेगा 8,68,000. दैट इज 9,60,000 प्लस 80,000, 10,40,000 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 1,60,000. दैट इज 8,68,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. सो वो हम यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को टेली करेंगे तो आंसर हमें सेम मिलेगा दोनों साइड का. समझ में आया? टोटल इज 24,65,500 एंड सेम 24,65,500. अंडरस्टूड? थैंक यू.